Let us have a quick revision of topic surface tension. Surface tension is a property of liquid due to which liquid surface behaves as stretched rubber membrane and has tendency to contract. Due to surface tension, a force acts parallel or tangential to the surface of the liquid, which is called force due to surface tension. Surface tension is measured by force acting on unit length of an imaginary line drawn at the surface of liquid tangential to the surface. So tension, surface tension is force acting on this imaginary line AB divided by length of the line AB. Surface tension is represented mostly with symbol capital T or S. Its unit is Newton per meter and its dimensional formula is mt minus 2. Factors on which surface tension depends is temperature. When temperature increases, surface tension decreases. On impurities, if impurities completely dissolve in liquid, then mostly the surface tension increases. But if impurities are not dissolving completely, then surface tension of the liquid decreases. Then medium in contact with the liquid, that means the medium which is above the surface of the liquid. And nature of liquid, different liquid have different surface tension. Temperature at which surface tension becomes zero is called critical temperature. Surface molecules do extra work against the molecules which are pulling the surface molecule down. So surface molecules have extra potential energy known as surface potential energy. So surface potential energy or work done by surface molecules to form the surface is calculated using the formula surface tension into change in area or surface tension into area of the surface. Since surface potential energy depends upon surface tension of the liquid and area of the surface, so to keep the surface potential energy as low as possible, the surface has tendency to reduce its area as minimum as possible, and that is why a drop has spherical shape, because for a given volume the surface area of a sphere is minimum. Because of the surface tension, liquid drops have a spherical shape, and a spherical shape is because they want to keep their surface area as small as possible. In order to keep their surface area as small as possible, liquid drop exert a force inside or exert a pressure inward on the liquid content inside the surface. So pressure inside the liquid drop increases, and it is increased by a factor or by a term 2T by R, where R is radius of the drop and T is surface tension of the drop. केवल यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड ड्रॉप है जिसमें सिर्फ एक सरफेस है, तो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 2T by R ज़्यादा होगा. अगर एयर बबल है और पानी के या लिक्विड के अंदर है तो उसके पास भी एक ही सरफेस है, उसका प्रेशर भी बाहर से केवल 2T by R ही ज़्यादा होगा. लेकिन अगर सोप बबल है तो उसके पास दो सरफेसेस हैं, एक अंदर और एक बाहर, तो उसके अंदर प्रेशर बाहर के कंपैरिजन में 4 times T by R होगा. जब हम लिक्विड को किसी कंटेनर में रखते हैं या किसी सरफेस पर लिक्विड ड्रॉप होती है, तो कांटेक्ट पॉइंट पर जहां लिक्विड कंटेनर की सरफेस से कांटेक्ट में है, वहां पर लिक्विड एक कर्व्ड शेप ले लेती है, क्योंकि जो कंटेनर की सरफेस और लिक्विड के बीच का एडहेसिव फोर्स है और जो लिक्विड के अपने ही मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव फोर्स है, उनके बीच जो कंपैरिजन होता है वो इस लिक्विड को एक कर्व्ड शेप दे देता है. अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो लिक्विड कॉन्केव शेप ले लेती है, और ये कॉन्केव शेप तब ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब कंटेनर बहुत थिन हो. और अगर कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है तो लिक्विड कॉन्वेक्स सर्फ शेप ले लेती है, और मरकरी और ग्लास के केस में कॉन्वेक्स शेप बनता है. अगर हम लिक्विड की सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस इनसाइड द लिक्विड, दे विल हैव एन एंगल. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. तो जिन सरफेसेस का शेप कॉन्केव होता है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होता है. जिन सरफेसेस का शेप कॉन्वेक्स होता है उनका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा होता है.
जो लिक्विड सरफेसेस और कंटेनर की या सरफेस की मटेरियल एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम रखते हैं, ऐसे मटेरियल को लिक्विड वेट करता है। और जिस मटेरियल और लिक्विड के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होता है, वो लिक्विड्स मटेरियल को वेट नहीं करते हैं। So angle between tangent drawn at liquid surface and container surface which is inside the liquid is called angle of contact. If angle is less than 90, then shape of meniscus will be concave and liquid will wet the container. If angle of contact is more than 90, then shape of meniscus will be convex and liquid will not wet the surface. इसका example glass और water है, इसका example glass और mercury है। Angle of contact between pure water and glass is 0, while angle of contact between mercury and glass is 90. मिनिस्कस के शेप की वजह से इसके ऊपर और इसके नीचे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अगर कॉन्केव मिनिस्कस है तो प्रेशर मिनिस्कस के ऊपर ज़्यादा होता है और मिनिस्कस के नीचे प्रेशर ऊपर से 2T/R कम होता है। इसकी वजह से साइड में जहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, लिक्विड यानी वाटर अंदर की ओर रश करने लगता है और पानी कैपिलरी में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। कैपिलरी एक बहुत पतले या थिन रेडियस की, बहुत कम रेडियस की थिन बोर की ग्लास ट्यूब को कहते हैं, जिसमें ये कॉन्केव मिनिस्कस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो कैपिलैरिटी का यानी पानी के ऊपर चढ़ने का या लिक्विड के नीचे डिप्रेस होने का फिनोमिना बहुत विजिबल हो जाता है। तो अगर कॉन्केव मिनिस्कस है तो प्रेशर नीचे कम होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट इन सरफेसेस का 90 से कम होता है। ऐसे लिक्विड कैपिलरी में ऊपर चढ़ेंगे। So rise or fall of liquid in capillary due to pressure difference above and below of curved meniscus is called capillarity. और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिक्विड कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा कैपिलरी में, वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। H is 2T/ρgr। यहाँ T सरफेस टेंशन है, ये लिक्विड की डेंसिटी है और R उस मिनिस्कस का रेडियस है। अगर हम मिनिस्कस के रेडियस को कैपिलरी के रेडियस से रिप्लेस करें तो यहाँ कॉस ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट आ जाता है और H is 2T cos θ/ρgr। इस इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए हम सिंपली ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब इस प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वाटर राइज करने लगता है तो वो तब तक राइज करता है जब तक H ρg, जो ये कॉलम वाटर का यहाँ क्रिएट हुआ, इसका H ρg प्रेशर इस 2T/R के प्रेशर डिफरेंस को बैलेंस ना कर ले। जब प्रेशर इस पॉइंट पर इस कॉलम की वजह से H ρg और P0 - 2T/R पहले से था और ये ऐड हो गया इसमें, जब ये प्रेशर P0 के बराबर हो जाता है तो प्रेशर डिफरेंस खत्म हो जाता है और लिक्विड अंदर जाना बंद कर देता है। तो ये प्रेशर जो B पर है वो A या C के प्रेशर के बराबर हो जाता है और इसे हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली H is equal to 2T/ρg R of meniscus या 2T cos θ/ρg R of capillary आ जाएगा। इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि H into R is 2T/ρg। ये सारे के सारे टर्म्स किसी एक लिक्विड के लिए कांस्टेंट है, तो H into R कांस्टेंट होता है। यानी अगर कैपिलरी की हाइट चेंज हो तो मिनिस्कस का रेडियस चेंज हो जाएगा टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट, या अगर कैपिलरी की रेडियस चेंज हो तो H into R is equal to कांस्टेंट। मतलब अगर कैपिलरी की रेडियस चेंज होगी तो वाटर कितनी हाइट तक चढ़ेगा ये हाइट भी चेंज हो जाएगी टू कीप द प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो H1 R1 इज इक्वल टू H2 R2। यह हम देख रहे हैं कि हम मिनिस्कस की रेडियस और कैपिलरी की रेडियस इन दो के बीच इस ट्राइंगल से एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है, तो ये टेंजेंट है और ये रेडियस ऑफ दिस कैपिलरी है और ये रेडियस ऑफ दिस मिनिस्कस है। तो रेडियस ऑफ मिनिस्कस एंड टेंजेंट आर 90। अगर ये थीटा है और ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये और ये 90 है तो ये एंगल, ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और इस तरीके से R/R इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। तो हाइट अप टू विच वाटर राइजेस और लिक्विड राइजेस इनटू रेडियस ऑफ मिनिस्कस दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड हाइट अप टू विच लिक्विड राइजेस एंड रेडियस ऑफ कैपिलरी दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर कैपिलरी की लेंथ रिक्वायर्ड हाइट से कम है जिस तक पानी को ऊपर चढ़ना है, तो पानी कैपिलरी से बाहर नहीं आता है बल्कि हाइट इनटू
मिनिस्कस का रेडियस, ये कांस्टेंट रखने के लिए मिनिस्कस अपने रेडियस को बढ़ा देता है और ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो ही इस लिक्विड को ऊपर चढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये लिक्विड तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कॉलम का वेट इस फोर्स को बैलेंस ना कर ले। इसीलिए अगर हम इस कैपिलरी को सैटेलाइट में लेकर जाएं तो क्योंकि सैटेलाइट में ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस रहता है और नेट फोर्स या कह सकते हैं कि ग्रेविटी फील नहीं होती है सैटेलाइट के अंदर, तो अगर हम कैपिलरी को सैटेलाइट के अंदर किसी पानी के कंटेनर में रख दें तो पानी को ऊपर चढ़ने के लिए जो हाइट चाहिए वो एक्चुअली इनफाइनाइट होगी, क्योंकि वहां पर लिक्विड कॉलम को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए जो रिक्वायर्ड वेट है वो एब्सेंट होगा। तो कैपिलरी में पानी ऊपर टॉप तक चढ़ता है लेकिन बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसका रेडियस ऊपर पहुंचकर फ्लैट सरफेस का शेप ले लेता है, यानी रेडियस इनफाइनाइट हो जाता है मिनिस्कस का, और h इंटू आर कॉन्स्टेंट है, ये रिलेशन होल्ड करता रहता है। इसके अलावा अगर h हाइट तक कैपिलरी में पानी चढ़ रहा है और हम उस कैपिलरी को थीटा एंगल टिल्ट कर दें तो ये जो लेंथ है वाटर की कैपिलरी में ये चेंज होगी, लेकिन वर्टिकल हाइट h वही रहेगी। तो कितनी लेंथ ये चेंज होकर हो जाएगी ये अगर पता करना हो तो हम इस ट्राइंगल से जितना एंगल ये टिल्ट हुई है उस ट्राइंगल से h डैश और h के बीच रिलेशन निकाल सकते हैं। h अपॉन h डैश विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, सो h डैश विल बी इक्वल टू h अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम कैपिलरी को थीटा एंगल टिल्ट कर दे वर्टिकल से तो ये लेंथ चेंज हो जाएगी और वर्टिकल हाइट अपॉन कॉस थीटा, जहां थीटा एंगल बाय विच दिस कैपिलरी इज टिल्टेड, ये है एंगल, लेकिन वर्टिकल हाइट चेंज नहीं होगी। जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल है इस टॉपिक से, उसमें एक न्यूमेरिकल है कि आपको सरफेस टेंशन दिया रहेगा और आपको कितना सरफेस एरिया बना, उसके लिए कितना काम करना पड़ा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम सिंपली W इज इक्वल टू टी डेल्टा ए ये फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद अगर एक ही सरफेस है तो टी डेल्टा ए और अगर दो सरफेस है तो 2t डेल्टा ए का यूज करके वर्क डन या सरफेस पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे सरफेस टेंशन दिया हुआ है और पूछा गया है कि सोप बबल जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे सोप बबल को बनाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू ट्वाइस सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, क्योंकि सोप बबल के दो सरफेसेस होते हैं। तो 2 सरफेस टेंशन की वैल्यू रख दी और चेंज इन सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि जब सोप सोल्यूशन से सोप बबल बना तो इनिशियली उसका एरिया 0 था और जब बबल बन गया तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 2 इंटू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो रिक्वायर्ड वर्क डन या रिक्वायर्ड सरफेस पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि एक ड्रॉप को छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दें या छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बना ले तो सरफेस पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा या कितना काम करना पड़ेगा। जैसे मरकरी ड्रॉप 1 मिलीमीटर के रेडियस की है और इसको 27 इक्वल ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया, तो वर्क रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना है, सरफेस टेंशन की वैल्यू दी हुई है। इसमें हमेशा पहला स्टेप ये होगा कि ड्रॉप का वॉल्यूम जब वो बड़ा था तब भी और जब वो छोटे ड्रॉप्स में टूट गया तब भी इक्वल रहेगा। तो एक बड़े मरकरी के ड्रॉप का वॉल्यूम 27 इंटू मरकरी के छोटे ड्रॉप्स के बराबर होगा। इस फॉर्मूले से हम छोटे ड्रॉप के रेडियस और बड़े ड्रॉप के रेडियस के बीच रिलेशन पता कर लेंगे। अगर 27 इक्वल ड्रॉप्स हुए हैं तो स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप डिवाइडेड बाई 3। अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क रिक्वायर्ड के लिए अपना फॉर्मूला टी डेल्टा ए यूज करेंगे। अगर एक ही सरफेस है तो टी डेल्टा ए, दो सरफेसेस है तो 2t डेल्टा ए। इस केस में सरफेस एक ही है क्योंकि ये मरकरी की ड्रॉप है, तो टी डेल्टा ए में सरफेस टेंशन रखा और डेल्टा ए यहाँ कैलकुलेट होगा फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया है 27 इंटू एरिया ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप और इनिशियल एरिया है बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया। तो जब हम इसे यहाँ रखेंगे तो फाइनल एरिया 27 इंटू छोटे ड्रॉप का सरफेस एरिया और इनिशियल एरिया हो गया बड़े ड्रॉप का सरफेस एरिया। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट करेंगे तो रिक्वायर्ड वर्क डन या रिक्वायर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल आ जाएगी। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो राइज ऑफ लिक्विड इनटू रेडियस ऑफ कैपिलरी में है। जैसे यहाँ वाटर राइजेस इन अ कैपिलरी अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रिड्यूसेस बाय 1/4 इन दी कैपिलरी। तो नई कैपिलरी में जिसका एरिया कम है कितने हाइट तक वाटर चढ़ेगा। इसके लिए h इनिशियल रेडियस ऑफ कैपिलरी इनिशियल शुड बी इक्वल टू h फाइनल रेडियस ऑफ कैपिलरी फाइनल।
यहाँ पर एरिया के टर्म्स में कैपिलरी की थिकनेस दी हुई है। पहले एरिया ए था और फिर a/4 हो गया, तो पहले एरिया पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया का था और अब फाइनली वो इनिशियल का 1/4 हो गया है। तो फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैपिलरी डिवाइडेड बाई 4। इससे हमको फाइनल रेडियस ऑफ कैपिलरी इनिशियल की 1/2 है, ये रिलेशन मिल जाएगा। अब हम इसको यूज करेंगे H इनिशियल R इनिशियल इज इक्वल टू H फाइनल R फाइनल। H इनिशियल हमको दी हुई है 4 सेंटीमीटर और H फाइनल निकालनी है। R इनिशियल एज इट इज लिखा रहने दो, R फाइनल की जगह R इनिशियल बाई 2 रिलेशन रख दो। इससे H फाइनल इक्वल टू 2 इंटू H इनिशियल आ जाएगा। यानी अगर रेडियस कैपिलरी की आधी हो गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1/4 हो गया है तो अब पानी पिछले हाइट से डबल हाइट ऊपर चढ़ेगा।